Hello, dear students. 12th standard. Today, we are going to cover up the last topic of electrochemistry chapter, and that is corrosion. Okay. Now, corrosion is the phenomena, or we can say the process in which that in which the metals are eating away by the gases and water vapors which are present in atmosphere, and due to the formation of certain compounds like oxides, uh, or sulfides or carbonates, etc. Means we can say the other salts of the metal, and this phenomena is corrosion. तो क्या होता है corrosion? Corrosion is the slowly eating of the metals by gases and water vapors present in the atmosphere, and due to the formation of different salts of the metal. So corrosion of iron is known as the rusting, and chemically rust क्या होता है बेटा? Rust is, we can say, a hydrated iron oxide, if that is, or there are other examples of corrosion also, like tarnishing of silver. When after some time the silver becomes black when it comes in the contact of the sulfide, basically hydrogen sulfide from atmosphere, and react with it and form silver sulfide. Okay, and due to which it uh, gradually the silver surface becomes black. You must observed it in the anklet also, जो मम्मियों की पायल होती हैं या chain होती हैं या rings होती हैं, तो after some time that gets tarnished because of the corrosion. Similarly, there is another one example of corrosion is green coating on copper and bronze. So you must have seen the vessel of जिसे हम लोटा भी कहते हैं, पानी जल चढ़ाने के लिए जो टेम्पल्स में भी, मंदिरों में भी आपका यूज़ होता है, या घरों पे भी कॉपर के बर्तन यूज़ किए जाते हैं. स्पेशली इट इज़ बिलीव्ड दैट इन कॉपर the water becomes more pure and we should take a water, drink water from the copper vessel. तो वो भी, उस पे भी ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं, या ब्रॉन्ज में उसमें भी ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं. सो ऑल दीज वी कैन से दैट इज द एग्जाम्पल्स या of corrosion, and which we can observe in our daily life. हम अपने घर पे भी इन चीज़ों को देख सकते हैं. ठीक है, तो हम अगर बात करें तो corrosion, that is basically, it is to be considered as an electrochemical phenomena, and that's why this is the reason that we are studying it in this chapter. ठीक है, so it is to be considered as the electrochemical phenomena, एंड अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग. अगर हम रस्टिंग की बात करते हैं तो उसको आगे लेकर के चलेंगे, बट अगर हम करोजन की बात करते हैं तो इट कॉजेज बेटा इनॉर्मस डैमेज टू द बिल्डिंग्स, क्योंकि बिल्डिंग्स मेटल्स की बनी हुई होती हैं, ब्रिजेस एंड शिप्स, और ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच मेड अप ऑफ metals, or especially that of iron. तो हम we lose crores of rupees every year on because of corrosion of metals. ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट द केमिस्ट्री ऑफ करोजन इज considered as electrochemical phenomena, and we can say in corrosion generally a metal is oxidized by loss of electrons to oxygen. metal क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, रिलीज करेगा, और किसको देगा? ऑक्सीजन को देगा, and ultimately it form oxide. And corrosion of iron, as I have already told you, it also occurs in presence of water and air. So we are going to study about the basically the rusting phenomena here in detail. ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे. सो एज यू कैन सी इट इन दिस फिगर. इस फिगर में देखिए बेटा, तो इसमें देखिए द करोजन इज टेकन प्लेस, एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है. iron that is converted into iron 2 positive and released 2 electron, whereas in case of oxygen it undergoes reduction, it gets reduced, and it forms when it combines with the H positive ions,
and consume 4 electrons, then it converted into the 2 water molecule. ठीक है, तो atmospheric oxidation overall reaction जो हो रही है, that is that when iron 2 positive combines with water plus half oxygen, it converted itself into the iron oxide and H positive ions. ठीक है बच्चे, सो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग हम क्या बात कर सकते हैं, दैट द इम्प्योर आयरन सरफेस जो होती है, इम्प्योर आयरन सरफेस जो होगी, दैट बिहेव्स एज दैट बिहेव्स दैट लाइक अ स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किसकी तरह करती है, स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या बोला मैंने, मॉइस्चर एंड विच कंटेन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा. ठीक है, ये देखो, तो ये एक आपका किस में करती है बिहेव, दैट वाज जस्ट 1 मिनट, मैं इसको इरेज कर दूं जो मार्क किया हुआ है आप लोगों का, देन वी मूव फर्दर. हाँ जी बेटा, ठीक है. So in this one we are saying yeah, ठीक है. सो अगर हम बात कर रहे हैं एट ए पर्टिकुलर स्पॉट की, तो हमने बात करी कि जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनमें आयरन से जो बने हैं, ऑक्सीडेशन जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा. और एनोड पे जो बेसिकली रिएक्शन होगी वो होगी Fe gives Fe2 पॉजिटिव, और क्योंकि 2 मोलर ले रहे हो बेटा तो 4 electrons will be released and to converted into 2 Fe2 positive, where electrode potential of Fe2 positive to Fe, that is equals to 0 minus 0.44 वोल्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने जैसे कहा था कि ये करोजन सेल या आपका करोजन कपल की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर, और इसमें जो होगा इन दिस मिनिएचर करोजन सेल्स में बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो आयरन किसकी तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह करता है. और जबकि जो इम्प्योर सरफेस एरिया है, क्या चीज बेटा, इम्प्योर सरफेस एरिया, दैट बिहेव एज अ कैथोड, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह. और बेसिकली जो हमारे अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर मॉइस्चर की, किसकी, मॉइस्चर की. ठीक है, तो मॉइस्चर जो होगा आपका, दैट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो याद क्या क्या रखेंगे हम, मॉइस्चर, वाटर जो इसमें है, ये मॉइस्चर जो है, ठीक, दैट बिहेव्स बेसिकली विच डिजॉल्व इन CO2, जो कि किस में डिजॉल्व है, देखो भाई ये वाटर प्लस CO2 जो कि कार्बोनिक एसिड में बन जाता है, दैट बिहेव्स बेटा ये हमारा किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह करता है. तो हमारा इसके अंदर आयरन जो है वो एनोड की तरह बिहेव करता है. जो सरफेस है, इम्प्योर सरफेस है जिस पर की रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, दैट बिहेव्स एज अ कैथोड. एंड जो वाटर प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, दैट बिहेव्स as an electrolyte, or sometimes we can say oxygen also present in the atmosphere, that also act as an electrolyte. So एनोड पे मैंने आपको रिएक्शन बताई दी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस इन विच आयरन कन्वर्टेड इनटू द Fe2 पॉजिटिव आयन, वेयर एज एट कैथोड बेसिकली जो होगा आपका रिएक्शन जो टेक प्लेस करती है वो होगी दैट ऑक्सीजन combines with H positive and electron and converted into water. तो ओवरऑल रिएक्शन जो होगी वो होगी हमारी दैट Fe, जैसा कि आपको डायग्राम में भी समझाया अभी. ठीक है, ये आपकी बेटा डायग्राम में, ये यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखो डायग्राम में ये आपकी, ये क्लाउड्स हैं या ये आपकी एयर है और एटमॉस्फेरिक गैसेस है, और यहाँ पर रिएक्शन हो रही है दैट Fe जो है वो कन्वर्टेड हो रहा है Fe2 पॉजिटिव में, और Fe2 पॉजिटिव जो है
व्हेन इट रिएक्ट कंबाइन विद ऑक्सीजन, तो ये आगे फर्दर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आयरन ऑक्साइड में। ठीक है, सो दिस इज द फिनोमिना विच टेक प्लेस। और इस केस में इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं एनोडिक स्पॉट पे थ्रू द मेटल, हमने बोला ये क्या इस पे चले जाएंगे, दूसरे मेटल पे चले जाएंगे, अनदर मेटल पे जाएंगे और फिर रिड्यूस करेंगे ऑक्सीजन को इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। और यहाँ पे H2SO CO3 जैसा मैं बोल रही हूँ, आपका कार्बोनिक एसिड भी प्रेजेंट होगा एज इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में, तो दैट विल फर्दर कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड एयर इनटू वाटर। और हाइड्रोजन आयन इन वाटर जो होगा that is available because of the dissolution of other oxides. ठीक है बच्चे, so this is basically the phenomena which take place in this one case in corrosion. And today we come to know about that corrosion is also a what, it is also an electrochemical phenomena. ये कैसा phenomena है बच्चे, एक electrochemical phenomena है जिसमें कि एनोड और कैथोड पे और ओवरऑल रिएक्शन आपकी ये टेक प्लेस करती है। एंड द फेरस आयंस जो कि रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज्ड हो रहे थे आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, दैट कन्वर्टेड इनटू फेरिक आयंस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि फर्दर रस्ट की फॉर्म में या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की फॉर्म में हमें मिलता है। और साथ में H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं जो कि वाटर में कन्वर्ट होते हैं। सो प्रिवेंशन ऑफ करोजन जो है, दिस इज अ बेसिक इंपॉर्टेंस फॉर ऑल ऑफ अस। ये हमारी मनी ही नहीं बचाएगा बट ऑल्सो इट हेल्प्स आउट टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, जैसे कि ब्रिज कोलैप्स हो जाता है या कोई और आपके ब्रिजेस बन रहे हैं या कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हैं, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ करोजन। और one of the basic, or we can say the simplest method of preventing corrosion is to prevent the surface of metallic object. हम सीधा ये करें कि मेटालिक ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में आए नहीं तो उसमें करोजन ही नहीं होगा। एंड हाउ इट कैन बी डन, इट कैन बी डन बाय पेंटिंग द सरफेस और with the help of some chemicals like बिस्फिनॉल। और हम ये कह सकते हैं कि हम सरफेस ऑफ मेटल्स को किसी और मेटल से जो कि कम रिएक्टिव है जैसे कि टिन है, जिंक है, विच आर इनर्ट और लेसर रिएक्टिव, तो उसकी कोटिंग कर दी जाए, या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से एक स्क्रैफिशियल इलेक्ट्रोड या अनदर मेटल की कोटिंग कर दे उसके ऊपर, लाइक मैग्नीज, जिंक एटसेट्रा, विच करोड इटसेल्फ बट सेव द ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो दीज आर द मेथड्स ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करोजन which prevents our huge amount of money, we can say. And अगर हम बात करते हैं तो आज हमने बच्चे आपका क्या क्या किया, we have done that what is corrosion, why there is need to study the corrosion and how it exists in nature and how we can prevent the corrosion. ठीक है, या रस्टिंग हम बात करें तो हमने कहा इसकी बैरियर प्रोटेक्शन हो सकती है, हमने कहा इसकी सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन हो सकती है, एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन हो सकती है। क्लियर हो गया? सो देयर आर दीज टू, this one question is also which you have to do it in your notebook, that is a question number 3.15 that explain how rusting of iron is emphasized as setting up of an electrochemical सेल। तो हम उसको कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं, तो बेटा आपको यहाँ पे एनोड, कैथोड और ओवरऑल रिएक्शन, एनोड पर क्या है, कैथोड पर क्या है और इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से बिहेव करता है, ये सारा एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं बता देती हूँ आपको, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ये वाली रिएक्शंस हमको यहाँ पे बतानी है इस क्वेश्चन में। व्हाट इज एनोड, व्हाट इज कैथोड, व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन, और आपका एनोड की तरह क्या बिहेव कर रहा है, कैथोड के इम्प्योर सरफेस है और इलेक्ट्रोलाइट आपका कार्बोनिक एसिड या
जो आपका क्या है, आपका ऑक्सीजन और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर. वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर एंड नाउ आई एम गोइंग टू द एक्सरसाइज पोर्शन. मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आपको बता दिया है. अब हम आगे चलते हैं. हमने इसका क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 ये हम सारे कर चुके थे. 8 9 हमने प्रीवियस क्लासेस में कर दिए. 11 12 13 14 15 16 ये भी हम कर चुके हैं. इन टुडे डेट you people have to do the question number 17 and question number 18 back exercise as well as the आज आप लोग इसका in text question that is question number 3.15 करेंगे. ठीक है, तो क्या क्या है 3.15 and the last two question of back exercise. ठीक है, थैंक यू.